So, welcome back. Okay, so I'm sure you guys are all are ready for the first chapter, chemistry. Uh, अभी अभी 10th स्टैंडर्ड पास करके आए हैं. So definitely you are in relaxing mode. Definitely you should be. You have prepared a lot for a 10th examination, and now it's 11th 12th. But don't mind. जो सीबीएसई का पोर्शन है वो बहुत सिंपल है, और स्पेशली फर्स्ट चैप्टर इज वेरी 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 इजी फॉर यू, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी इतना पढ़ाई कर करके आए. तो सेंट्रल बोर्ड वाले या स्टेट बोर्ड वाले, दे वांट टू गेट योर माइंड लेवल रिलैक्सिंग मोड. तो दे हैव गिवन द फर्स्ट चैप्टर इज वेरी 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 सिंपल. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो वी आर गोइंग टू enjoy this chapter thoroughly. And before starting this, let me clear you. During the explanation, I am going to share my PPT, as well as I am going to share my book. And apart from that, I'm going to use your textbook, NCERT textbook I'm going to use. So during the preparation, during the teaching methodology, I'm going to use all those three things. So be ready for that. With that, you are supposed to use your pen and paper. Let's start our first chapter. I'm sharing my screen. Just give me a moment. Today, what we are going to cover. Today, what we are going to cover, what basically the chemistry is, development of chemistry की कैसे कैसे धीरे धीरे करके ये chemistry develop होती जा रही है gradually, importance of chemistry in our day-to-day life, nature of matter, its states of matter and their properties, classification of matter. Though most of the thing you have already learned in the previous classes, I know, but then also your our जो education board है, they want us to remember all those basic concept in detail again and again, so that these things will be gradually आपके अंदर inhale हो जाए. इसीलिए वो keep on the educational board keep on repeating the same thing, the basics of chemistry again and again. 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, every time you are going to learn some things every time. All right, so that is the main purpose, they repeat it. So what basically the chemistry is, केमिस्ट्री इज क्या होती है भाई, एक तरीके से साइंस की एक ब्रांच होती है. ब्रांच कैसी होती है कि इसके अंदर आप बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हो. दे डू केमिकल रिएक्शन टुगेदर, दे फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स. वी टेक ऑक्सीजन, वी टेक कार्बन, वी एमिट कार्बन डाइऑक्साइड, वी ड्रिंक वाटर, वी ईट कॉमन सॉल्ट. ईच एंड एवरीथिंग सराउंडेड बाय अस आर बेसिकली द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. समझ में आई बात? तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द chemical elements and compounds and how they work together and change. They work together, they definitely make something new, and they will change their identity later on. In another word, we can say the chemistry is the science which is talking about the fundamental properties of matter and chemical reaction. नाउ केमिस्ट्री इज नॉट ओनली द सिंपल छोटी सी चीज की बस केमिस्ट्री के बारे में, एलिमेंट कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ लिया एंड दैट्स इट. नो, इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट राइट नाउ. लाइक इनिशियली वी यूज टू लर्न साइंस 1 एंड साइंस 2, जिसमें हमने केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों को साथ साथ पढ़ा था. नाउ 11th ग्रेड से आते 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 आपको धीरे धीरे जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे, 11th 12th एंड देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, you will be familiar with the different parts of chemistry. The different parts of chemistry are ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री. ये चार केमिस्ट्री तो आपको इसी साल 11th ग्रेड में डिटेल में सीखने को मिलेंगी विद द सेम टेक्स्ट बुक. न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायोफिजिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर, क्वांटम, एनवायरमेंटल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनकी डिटेल स्टडी भी आपको ग्रेजुअली करने को मिलेगी लेटर ऑन बड़ी बड़ी क्लासेस में आते आते. ठीक है, डिफरेंट टेक्स्ट बुक से लर्निंग करना होगी, डिफरेंट एग्जाम पेपर्स होंगे एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. ऑल राइट, सो अल्टीमेटली ये सारी चीजें, सारी केमिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं, ये मिलकर केमिस्ट्री को बनाती हैं. क्लियर हुआ? नाउ लेट्स स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में देखो, आपसे आपका जाना पहचाना कोई एक पिक्चर लगाया हुआ है मैंने. ठीक है, ये कौन है भाई? हैरी पॉटर है. हैरी पॉटर के बाजू में एक और आपको एक पिक्चर लगाया हुआ है विच इज पारसमणि. अब ये पिक्चर मैंने लगाया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री वाली स्लाइड में. डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की स्लाइड से थ्रू ये पता चलता है कि भाई ये जो हम केमिस्ट्री के बारे में आज बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ये हमें अभी अभी पता चला है. नो, इट्स एंशियंट टाइम में, काफी लंबे टाइम पहले हम पारसमणि के बारे में या बात किया करते थे. या हैरी पॉटर में उन्होंने सॉर्सरस स्टोन के बारे में बात की थी. तो पारसमणि बेसिकली एक माइथोलॉजिकल मटेरियल होता था जो कि बेस मेटल को गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट कर देता था. इन द सेम मैनर ये जो एलेक्सर ऑफ लाइफ है, दैट वाज कैपेबल ऑफ क्योरिंग इलनेस, रिन्यूइंग यूथ एंड granting immorality to those who possessed it.
तो ये सारी चीजें आपने हैरी पॉटर मूवी में ऑलरेडी देखी होंगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा, और समटाइम आपने विचार भी किया होगा कि अरे ये क्या नई चीज आ गई है जो उसके हाथ में। क्लियर हुआ? दैट मीन्स केमिस्ट्री का शुरुआत उस जमाने में उस टाइम पर हो चुकी थी। सबसे पहले अगर केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी कॉमन इरा 1300 to 1600 के टाइम पे। कॉमन इरा 1300 to 1600 टाइम में दो फॉर्म में इसको जाना जाता था, एक तो एल्केमी में और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी स्टडी और करती गई करते गए करते गए, मॉडर्न केमिस्ट्री जो आज हम और तुम पढ़ रहे हैं वो 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस की गई। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती थी वो मेडिसिनल केमिस्ट्री कहलाती थी, जबकि जो अल्केमी केमिस्ट्री होती थी वो मैटर के बारे में हमको इंट्रोड्यूस कराती थी। हमारे जो इंडियन जो कल्चर था उसमें भी हमने केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र के फॉर्म में पढ़ा हुआ है, जहां पर रसायन शास्त्र के अंतर्गत भी मेटलर्जी, मेटलर्जी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, मेटलर्जी, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग, जिप्सम की, सीमेंट की आप अभी अभी पढ़कर आए हो, जिप्सम का पूरा मैन्युफैक्चरिंग, किस तरीके जिप्सम सॉल्ट जिप्सम सीमेंट बनाई जाती है, ये 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें पहले के जमाने में एंशियंट टाइम पर ही रसायन शास्त्र में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। करेक्ट? तो ऐसा नहीं है कि ये आज ही हम लोगों ने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तब हम केमिस्ट्री के बारे में पता कर रहे हैं। इट इज द एंशियंट वर्क विच हैज ऑलरेडी डिस्कवर्ड बाय अवर साइंटिस्ट। कैसे पता चला ये सारी बात? हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हड़प्पा संस्कृति में जो लोग रहते थे, हड़प दे यूज टू यूज दीज कॉपर वेसल्स, copper vessels. That means why they used to use these copper vessels, because they were very hard. The hardness of copper for making artifacts, by the using tin and arsenic they used these things. Clear हुआ? That means they were very much aware about the qualities of copper and other elements. Copper utensils, iron, gold, silver ornaments, and painted grey pottery have been found in many archaeological sites in North India. So the proof that it was, earlier already, the ancient people were already aware about the magic of chemistry. द पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल ऑफ अजंता एंड एलोरा, कौन कौन गया यहाँ पर? अजंता और एलोरा में जो पेंटिंग्स बनाई गई है ना बच्चे लोग, वो बहुत आज तक, मतलब उनको देखो तो ऐसा लगता है कि यार अभी अभी बनी है, अभी कुछ ही साल पहले बनी है। दे स्टिल लुक वेरी 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 फ्रेश। जिसके थ्रू ये पता चलता है कि जो उनका साइंस का लेवल था, दैट मीन्स एंशियंट पीपल जो थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे या जो ऋषि मुनि थे, वो लोग इतने होशियार थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने उस जमाने में वो सारी डिस्कवरी कर ली थी, जिसकी वजह से वो सारी जो पेंटिंग्स हैं या फिर अजंता एलोरा में जिस तरीके की गुफाएं हैं वो सारी आज भी फ्रेश देखने को मिलती हैं। दैट मीन्स वो जिन कंपोनेंट से मिलकर बनाई गई थी, वो कंपोनेंट्स के अंदर उन्होंने जो मिक्सिंग की थी, दैट वाज सो इंटेलिजेंट मैनर में बनाई हुई चीजें थी। लेटर ऑन हमारे सुशिक्षित वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा शास्त्र क्रिएट किया था जिसको आप बोलते हैं सुश्रुत संहिता। इसके थ्रू भी एक्सप्लेनेशन किया गया था इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलीज का। चरक संहिता में भी ये मेंशन किया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिंक एंड जिंक, इन सब के बारे में चरक संहिता में भी बताया गया है। फिर वराहमिहिर करके जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ग्लूटिनस मटेरियल, जैसे कि जो दीवारों को एक दूसरे से चिपकाए रहता है, आपने देखा होगा कि जो कई बड़े बड़े महल होते हैं, या पुराने जो राजस्थान में हम लोग कई सारे महलों को देखते हुए आ रहे हैं, और जो पुराने आर्किटेक्चर होते हैं वो इतने लंबे टाइम के बाद भी आज की तारीख में स्टेबल है। हजारों साल बीत गए मगर उनकी दीवारों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आंधी आए, तूफान आए, बारिश हुई, मगर वो आपस में इतनी तरीके से इतनी अच्छे तरीके से चिपके हुए हैं कि वो खिसकती नहीं है दीवारें। दैट मीन्स उस जमाने में जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था, द केमिकल्स विच यूज्ड टू बी अप्लाइड ऑन वॉल्स एंड रूफ ऑफ द हाउसेज एंड टेम्पल्स वर सो डीपली, केमिकली उनका जो कंस्ट्रक्शन था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, विच इज स्टिल working on the proper manner. It was prepared entirely from the extract of various plant, fruits, and seeds and barks, which were concentrated by the boiling and then treated with various resins and reference of the perfumes, cosmetic, and hair dyeing made from the plants also. So समझे आप कि हमारे जो साइंटिस्ट थे वो लोग ऑलरेडी इतनी सारी डिस्कवरी करके आए हुए थे। तो हम और आप तो बैठ के सिर्फ केमिस्ट्री की किताबें पढ़ रहे हैं। करें, यहाँ पर महर्षि कणाद ने ऑलरेडी इन्वेंट कर दिया था। ही हैज ऑलरेडी इन्वेंटेड atomic theory at least 2500 years before, 2500 ईयर बिफोर जॉन डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट अब जाके एटॉमिक थ्योरी 2500 के बाद बोल पाए, बट महर्षि कणाद ने
2500 साल पहले भी सेम बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है मैटर का, एक मैटर होता है मतलब कोई भी पदार्थ होता है, उसका सबसे छोटे वाले पार्ट को परमाणु बोलते हैं, जो कि आज की तारीख में एटम के नाम से जाना जाता है। ही इवन एक्सप्लेन द डायमेंशन, द मोशन एंड इवन द केमिकल रिएक्शन ऑफ परमाणु एज वेल एज its compound which they have formed after the chemical reaction. So that Maharishi Kanad was very intelligent scientist, right? But over a period of time धीरे धीरे करके उनका नाम खत्म होता चला गया, एंड लेटर ऑन जो न्यू साइंटिस्ट है उनका नाम हो गया। तो जो जितने भी पुराने साइंटिस्ट थे बेटा, उन लोगों ने क्या किया था, बहुत सारी रिसर्च करी थी इन, और डिफरेंट साइंटिस्ट ऑलरेडी उसको यूज कर करके उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, और करते 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 आज भी नई नई टेक्नोलॉजीज फॉर्मेट आउट होती जा रही हैं। तो दैट मीन्स केमिस्ट्री का डेवलपमेंट काफी लंबे टाइम पहले कॉमन इरा के टाइम पर हो चुका था। बट हमारे और तुम्हारे लिए आज केमिस्ट्री जो है वो मॉडर्न केमिस्ट्री के फॉर्म में टीच करवाई जाती है। क्लियर? नाउ अगेन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। नाउ बिफोर दैट अथर्ववेद और इन सारे साइंटिस्ट के नाम और इनका एरा यूजली 11th ग्रेड के एग्जाम में इतना डिटेलिंग में ये सारी चीजें पूछी नहीं जाती हैं। बट देन ऑल्सो इन एमसीक्यूज और इन वन क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चंस में कभी कभी साइंटिस्ट का नाम, कभी कभी इरा का नाम, या फिर द इन्वेंशन का नाम पूछ लिया जाता है। तो आई प्रिफर यू कि भाई आप लोग इनके बारे में ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें इसमें जानते हैं, बट हैव अ लुक इनटू द डिटेलिंग ऑफ दिस चैप्टर ओवर हियर व्हिच दे हैव मेंशन इन द फर्स्ट 2-3 पेजेस, एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स अंडरलाइन कीजिए, एंड देन द बेसिक थिंग्स कम्स नाउ। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये सब ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हो, तो आई एम श्योर कि आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। बट देन ऑल्सो मैं आपको अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ, जहां पर मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से एटम्स क्या होते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके बारे में सिखाऊंगी। ठीक है? तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम मैटर। मैटर क्या होता है भाई? मैटर कोई भी चीज, ऐसे सिंपल मेरे हाथ में ये पेन है, डिजिटल पेन है, इसका खुद का एक स्पेस है, इसका खुद का एक मास है। तो ऑल दोज थिंग्स व्हिच हैज देयर ओन मास व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस विल बी कंसिडर्ड एज मैटर। अब मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो कहलाता है एटम। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम। कोई भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट आप उसको कंसीडर कर सकते हो एलिमेंट की फॉर्म में। अब एलिमेंट के अंदर का भी सबसे छोटा, द वेरी माइनर पार्ट इज बेसिकली नोन एज एन एटम। सो हमारी चारों तरफ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, हीलियम, और जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मैटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। इनफैक्ट ये जो मैटर है पेन, ये भी किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर भी कोई ना कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट है। उस एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? एटम। एटम, इनको अपन किस फॉर्म में याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट थिंग ऑफ एनी एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट थिंग ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई हैंड राइटिंग दिस अराउंड। अब जैसे हमने बात करी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन का नाम लिया। हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एच, ऑक्सीजन, कार्बन, आई थिंक यू गाइज आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस काइंड ऑफ सिंबल्स। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में सीख के आए, राइट? बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे सिंबल्स किस चीज के दिए हुए हैं? एलिमेंट्स के। अब इनमें से किसी एक सिंपल का एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया द सिंपलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, ये हम सब ने सीखा हुआ है। दैट मीन्स इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है? अब हाइड्रोजन का जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको अपन कंसीडर करते हैं एटम के फॉर्म में। नाउ 1 हाइड्रोजन एटम will add with another hydrogen atom and then it will make H2, which is known as molecule. Am I clear to you? When two atom, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम, दूसरा सिंगल हाइड्रोजन एटम एंड तीसरा H2 जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको आप बोलेंगे मॉलिक्यूल। साधारण शब्दों में बात करूं, जब दो अलग अलग एलिमेंट या
दो सिमिलर एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो आप क्या बना, वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के अंदर दो सबसे छोटे पार्ट होते हैं जो कि कहलाते हैं एटम। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर का सबसे छोटा पार्ट कहलाता है एटम, और दो एटम मिलकर आपस में बना लेते हैं मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ? ओके, आई एम इरेजिंग इट नाउ। एज वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, बोथ ऑफ देम आर एटम। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर मैं हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया O मतलब क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन। O ऑक्सीजन, O ऑक्सीजन, तो हम जब O सिंगल फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम किस O की बात कर रहे हैं, एटम की फॉर्म में। जब ये दो O आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, O2। तो ये क्या हो गया, O2 मतलब कि मॉलिक्यूल। समझ में आया? तीसरा, He प्लस He, हीलियम प्लस हीलियम, क्या बना रहे हैं, हीलियम मॉलिक्यूल। तो जब ये सिंगल कैटेगरी के फॉर्म में लिखे जाते हैं, सिंगल सिंगल अल्फाबेट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो हम इन चीज को बोलते हैं एटम। वेल क्लियर? और जब ये डबल के फॉर्म में लिखे जाते हैं, H2O2 He2, इनको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल। समझ में आई बात? आई थिंक सो। ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है केवल दो ही एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, सम टाइम कभी कभी कोई कोई से एलिमेंट तीन आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, सम टाइम कोई कोई से एलिमेंट चार आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, सम टाइम कोई कोई से एलिमेंट पांच या आठ। जैसे सल्फर का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जो सल्फर एस रिप्रेजेंटेशन होता है सल्फर का, इज एन एटम। ऐसे सल्फर के टोटल आठ एलिमेंट, आठ एटम, एक दो तीन चार पांच सल्फर, छह सल्फर, सातवां सल्फर और आठवां सल्फर सल्फर, ये टोटल एट सल्फर एटम आपस में जब मिलते हैं तब जाकर एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है। दैट मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मॉलिक्यूल में टू लगाया जाए। दैट मीन्स इट डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर एलिमेंट कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर कितने एटम एसोसिएट होंगे, तब जाकर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनेगा। एम आई अंडरस्टैंडेबल टू यू? दैट मीन्स each element has particular kind of combining capacity to make a particular molecule. Right now we have taken H2O2 He2, where you must have seen there are two atoms are joining and making one molecule. Well clear? But when you are talking about sulfur molecule, you must have observed I have taken eight sulfur atom, one sulfur atom, second sulfur atom, third sulfur atom, fourth sulfur atom, fifth sulfur atom, sixth sulfur atom, seventh sulfur atom, and eighth sulfur atom. These eight sulfur atoms are joining with each other and they are converting themselves into one molecule of sulfur, which is now represented by S8. So S8 is the molecule of sulfur. O2 is the molecule of oxygen. H2 is the molecule of hydrogen. He2 is the molecule of helium. In the same manner, N2 is the molecule of nitrogen and many more. Fe2 is the molecule of fluorine. Cl2 is the molecule of chlorine. समझ में आई बात? तो जब भी हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तब हमें हमेशा ये याद नहीं रखना होता कि सबके आगे टू लगा दिया तो मॉलिक्यूल बन गया। नो, we need to our concept should be so clear that which kind of element is making which kind of molecule. Some molecules are monoatomic, some molecules are diatomic, some molecules are tri, tetra and polyatomic, which we will be gradually learning the same thing later on. Okay, so now again I am stop sharing my whiteboard to you and moving towards the PPT as well as the textbook to move ahead with the syllabus, the portion which is given in our book. I am stopping it. तो हमने क्या देखा, एटम्स जो छोटे पार्ट हैं वो आपस में मिलकर बना रहे हैं मॉलिक्यूल, जो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना।
फिर से रिमाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है, करेक्ट। सल्फर मॉलिक्यूल के बारे में एक थोड़ा सा नया अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि सल्फर जो होता है वो बहुत सारे एटम्स के साथ मिलकर, कितने सारे, टोटल 8 एटम्स के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। आप इन सब चीजों को बोल सकते हो पॉल, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है उसको आप बोल सकते हो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिनके अंदर केवल एक है आप उनको बोल सकते हो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू। सो अगर जो मॉलिक्यूल है जो कि दो एटम से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। याद आया, वी हैव लर्नड इट इन द प्रीवियस क्लास। सो द ट्राई वन, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट मीन जिसमें थ्री एटम्स आपस में मिलकर बने हुए हैं, है ना। टेट्रा मतलब चार एलिमेंट्स, चार एटम्स जिससे मिलकर मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। पेंटा मतलब फाइव मिलकर बना रहे हैं, एंड द थिंग्स गोज लाइक दैट। एंड अल्टीमेटली जब बहुत सारे एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उसका नाम बोल देते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया है सल्फर का, दैट बिलोंग्स टू दैट सेम कैटेगरी ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ, जिसमें बहुत सारे एटम्स, टोटल 8 एटम्स आपस में मिलकर एक सल्फर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, right? So again I am sharing my screen to explain the further things of your textbook, of your portion. Okay, so now this is the next slide of our portion, which is state of matter, states of matter. This thing also you have learned in the previous classes very well, in very detail in fact. But again it is in our portion and we should be, again reminding our mind to the basics things. Now there are three states of matter: solid state, liquid state, as well as gaseous state. You can see the picture over here. In the solid state the particles are very 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 much close together and they have the definite volume also, while the particles, or we can call them the things which are, the small circle which you can see in this beaker, are little far from each other, while in the gaseous state you can see the particles are very far from each other. So these are the recognition which you can, find it out. The solid are, very much close, they have the definite volume, they have the definite shape. Liquids have definite volume but do not have definite shape. They take the shape of the container in which they are possessed. So जैसे अगर मुझे इस बॉटल में अंदर मेरे पानी भरा हुआ है, राइट, ये पानी का शेप अगर मैं ग्लास में कन्वर्ट कर दूंगी तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा। But if I want to change the shape of this bottle, I won't be able to change. Why? Because this bottle is in the cylindrical shape. The water inside this bottle can change its shape due to its, liquidity, or we can call the particles of the liquid can change their shape according to the shape of the new container. Right now they are in this bottle. Later on, if I'm putting this water into the glass, they will take the shape of the glass. But this bottle will not change its shape. The reason behind this is the solid particles are, very much tightly closed with each other. They are very, very strongly bonded with each other. तो वो इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, राइट। और अगर मैं गैसेस की बात करूं, मेरे चारों तरफ में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम गैस एंड मैनी अदर गैसेस आर अराउंड, सराउंडेड ओवर हियर, राइट। आपके चारों तरफ भी हैं, बट इनका कोई शेप नहीं है। क्यों शेप नहीं है भाई? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है वो चारों तरफ दूर 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 फैले हुए हैं। समझ में आया बात? अब इतनी दूर दूर फैले हुए हैं तो उनका कोई शेप बन ही नहीं सकता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विच ऑल्सो वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस, वेयर solid have the definite volume and definite shape. लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लाइक अगर मैं 1 लीटर पानी की बात करूंगी तो 1 लीटर पानी को अगर मैं बॉटल में लेती हूँ और फिर मैं उसको किसी दूसरे कंटेनर में चेंज करती हूँ तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स इट हैज द डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप। मतलब अगर 1 लीटर पानी को मैंने इस बॉटल के अंदर लिया है तो इसका शेप इस बॉटल के शेप का होगा, बट 1 लीटर पानी को अगर मैंने बकेट के अंदर डाल दिया तो दैट विल चेंज द शेप ऑफ bucket. Am I understandable to you? That means liquid have definite volume but do not have definite shape, while solid have definite volume as well as definite shape. Gases have neither definite volume नॉट डेफिनेट शेप। मतलब मैं इस कमरे के चारों तरफ जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उसके बारे में ये नहीं कह सकती हूँ कि कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस यहाँ पर प्रेजेंट है, कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस इस प्रेजेंट यहाँ पर इस कमरे में प्रेजेंट है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन दिस रूम। आई कैन नॉट से दैट, राइट। इन द सेम मैनर आई कैन नॉट से दैट in which shape it is right now present, if it is in this block or in this block or upward or behind, everywhere it can be. Why? Because these are the particles which are moving surrounded everywhere. They do not have intermolecular connection between them, right? So they can move anywhere, random movement, they may possess a random movement,
Well clear to you? They completely occupy the space in the container in which they are placed. So if I'm assuming this room as a container, so whatever place they would like to go, they can go. They do not have, any foundation. While solid do not possess such kind of things because they are tightly bound with each other. Clear hua? So these are the properties states of matter. Next slide. Interconversion of matter. This thing also यू मस्ट हैव ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट कि जो आपका मैटर है, जो तीनों स्टेट के मैटर है, दे कैन इंटरली इंटर कन्वर्सेशन कैन बी हैपन. दैट मीन्स liquid can be converted into the solid can be converted into the liquid can convert into the gases can be converted into the liquid or into the solid. So these are the conversation which you can see on this slide. See, I have given a very beautiful picture by which you can understand and recall yourself from the previous classes. You must have already learned this thing. Freezing like लिक्विड, हमारा जो पानी है H2O है, अगर मैं उसको फ्रीज कर देती हूँ तो ये किस में बदल जाता है? आइस में. राइट? जो आइस है वो किस कैटेगरी, लिक्विड जो था जब H2O था, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता था? लिक्विड को. L फॉर लिक्विड. क्लियर हुआ? आइस जब भी बन गया तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग करने देगा? सॉलिड को. S फॉर सॉलिड. ठीक है. अभी लिक्विड को जब भी मैंने फ्रीज किया तो इट कन्वर्टेड इनटू आइस. व्हेन this ice convert into the water vapor, water vapor will be in the form of gaseous. These are the water vapors. ये मैंने assume करके दिया हुआ है, ऐसा assume किया हुआ है. evaporation की process के दौरान, condensation की process के दौरान, freezing के बाद, melting के बाद, deposition and sublimation के बाद, ये सारी चीजें एक दूसरे से interconvert हो सकती हैं. आपने इसी चीजों को already डिटेल में पढ़ा हुआ है. I don't think you need a further explanation for the same. And if you need, I will explain it again. No problem, I have. But condensation matlab synchronization, and they will condense and then they will convert into the atoms will come more closer to each other. Evaporation, that means the more particles will move ahead and they will convert themselves into the gaseous part. Freezing means again they will be coming together and convert themselves into the solid part. Melting, that means again the particles will be melt and they will gradually go apart from each other and they will convert into the liquid material. Sublimation is the process where the solid material directly converting into the gaseous material. याद आया? कैम्फर का एग्जाम्पल हमने 9th ग्रेड में पढ़ा हुआ था कि कैम्फर को हम रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद गायब कैसे हो जाता है? वाई? बिकॉज कैम्फर जो है ऑटोमेटिकली सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. तो द सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसेस मटेरियल without coming into the liquid material, which is known as sublimation. Ultimately interconversion happening, right? डिपोजिशन मतलब कभी कभी आपने देखा होगा आसमान में से ओलेट गिरते हैं, जो छोटे छोटे आइस के फॉर्म में जो स्नोफॉल होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ डिपोजिशन, जो कि वाटर वेपर डिपोजिशन के फॉर्म में आपको अर्थ पर मिलती है. इन द फॉर्म ऑफ fog, in the form of snowfall, you must have observed. Hail storming is also is a example of deposition. Well clear? I think this much of explanation is required for the same because you have already learned those things. It is just for understanding. Next thing. अब मैटर जो हमने डिस्कस किया था, मैटर क्या होता है भाई? हमने ऑलरेडी सबसे पहले क्लास के डिस्कस किया था और आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ दिस पेन. दिस पेन हैज its own shape, it occupies its space. So I have considered this pen as a matter. अब जैसे कि हाँ, तो जो पेन के बारे में मैंने डिस्कस किया था वही डिस्कशन मैं आपके साथ और मेरे साथ भी कर सकती हूँ. कैसे? अब आपने भी एक स्पेस घेर के रखी हुई है, मैंने भी अपनी चेयर के ऊपर स्पेस घेर के रखी हुई है. आपका भी एक मास है, आपका खुद का एक वजन है, मेरा भी खुद का एक वजन है. तो आप, मैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, दिस माइक, दिस वाटर बॉटल, एवरीथिंग अराउंड अस इज कंसिडर्ड एज मैटर. ठीक है. अब ये सारी चीजें तो हमने बोला कि हमें दिखती हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. पेन को मैंने हाथ से उठा लिया तो इसको तो आप ऑब्वियसली मैटर बोल दोगे. बट कुछ चीजें जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि गैसेस, राइट? जैसे कि हवा चारों तरफ, जैसे कि कोई भी अपने चारों तरफ एनवायरमेंट में प्रेजेंट कोई भी गैस, लाइक हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, प्लेन, कोई भी गैसेस हैं, उनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी मैनी गैसेस, तो यू कैन नॉट सी दैट, यू कैन ओनली फील दैट. सो विल यू कंसिडर दिस थिंग एज अ मैटर? यस और नो? डेफिनेटली यस. वाई? बिकॉज जब भी हम बलून में हवा भरते हैं अपने मुंह से,
करके भरते हैं, है ना, तो वो बलून फूल जाता है। फूल जाता है मतलब हमारे अंदर से जो गैस गई उसने एक पर्टिकुलर स्पेस लिया, उस स्पेस की वजह से वो बलून फूल गया। और अगर हम कंटिन्यूअसली ब्लो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो बलून अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ब्लो करता जाएगा। बट जैसे ही उसकी कैपेसिटी खत्म होगी, मतलब उसके अंदर की वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी अगर खत्म होगी, तो वो फूट जाता है। और हम जो मुंह से हवा कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं वो पूरी की पूरी फूटने के बाद वो बलून ब्लास्ट हो जाता है। जो हमारे मुंह की हवा है वो हवा में बाहर, एयर में बाहर आ जाती है। दैट शोज कि जो एयर है वो एक तरीके से एक मैटर की तरह बिहेव कर रही है। और अगर आप उस बलून को, फ्लैटेड बलून को और फुलाए हुए बलून को वेट करोगे तो उन दोनों के अंदर भी आपको मास पता चलेगा। तो वॉट एवर कंटेंट हैव देयर ओन मास विल बी कंसिडर एज मैटर, वेदर वी आर एबल टू hold them or not hold them, whether we are able to see them with our naked eyes or not, they will be considered as matter। ठीक है। अब जैसे छोटा सा मैटर हमने एग्जांपल लिया है एटम का। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़े होंगे, राइट? तो मैं फिर से रिमाइंड करती हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपने को माइक्रोस्कोप लगाकर भी हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इजीली। क्लियर? इट्स एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में उनकी डिस्कवरी चली है, और उनके बाद वो सारी डिस्कवरी हमारी टेक्स्ट बुक में आ गई है, हमारे हमारे और आपको पढ़ने के लिए। बट दैट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू गो टू योर स्कूल लेबोरेटरी एंड फाइंड इट आउट। जैसे बोलो आप कि टीचर हमको तो इलेक्ट्रॉन को देखना है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऑल राइट। सो वो इतने छोटे होते हैं, बट देन ऑल्सो दे हैव देयर ओन मास, तो उनको भी आप मैटर के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हो। क्लियर हुआ? एनीथिंग जिसका एक छोटा सा मास है, एनीथिंग विच हैज देयर ओन, विच ऑक्यूपाइज इट्स ओन स्पेस, विल बी कंसिडर एज मैटर। ठीक है। अब ये मैटर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से हमने क्लासिफाई किए हैं। अगेन मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, एंड हियर वी गो। ओके, नाउ दिस इज मैटर। कैन इट बी फिजिकली सेपरेटेड? आप किसी मैटर को फिजिकली सेपरेटेड कर सकते हो? यस, भी कर भी सकते हो, नो नो भी कर सकते हो। जब आप नहीं करते हो तब आपको, जब आप, जैसे मैंने बोला, ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। और कार्बन को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हाइड्रोजन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ऑल दोस मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड विल बी कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस। समझ में आई बात? प्योर सब्सटेंस आप किसको बोलोगे? सबसे ज्यादा प्योर कौन है, आप और मैं? प्योर सब्सटेंस वो हैं जिनको आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हो। और इस कैटेगरी में दो अलग अलग दो चीजें आती हैं। एक तो आते हैं कंपाउंड, जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। एक तो होते हैं कंपाउंड और दूसरे होते हैं एलिमेंट। जैसे कि मैंने ये वाटर बॉटल का एग्जांपल लिया, इसको मैंने बोला इसका खुद का एक वजन है, ये खुद एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। वेदर ये बॉटल के शेप में, कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, इसको मैं बकेट में शिफ्ट कर दूंगी तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। बट वाटर मॉलिक्यूल में से अगर मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोजन को अलग निकाल दो, ऑक्सीजन को आसानी से निकाल दो, तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल थिंग, दैट्स नॉट इजीली पॉसिबल बाय यू एंड मी। हाँ, दो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से तो हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, बट देन ऑल्सो एलिमेंट को आप अलग अलग सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। क्लियर? सो कंपाउंड कैन नॉट बी, द कंपाउंड एंड एलिमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंसेस। पानी प्योर है, कार्बन डाइऑक्साइड प्योर है, हाइड्रोजन प्योर है, कार्बन प्योर है, ऑक्सीजन प्योर है। तो प्योर एलिमेंट के फॉर्म में आप एलिमेंट, जितने भी हमारे प्योरिटी टेबल में एलिमेंट्स हैं, दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस, एज वेल एज the compound which we are familiar with day to day life, common salt, water, ammonia gas, carbon dioxide gas, they all are the compound which we are very much familiar with those terminologies. So they are also cannot be separated, so they will also come in the category of pure substances. So there are two kind of pure substances, one which cannot be chemically decomposed, which is element. The substances which can be chemically decomposed are known as compound. Chemically decomposed मतलब क्या बात बोली? Water molecule. Let me use my pen. I think it is visible. Yes, very good. H2O, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। यू गाइज आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, राइट? अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। क्लियर? अब इनको मैं आपसे बोलूंगी कि आप हाइड्रोजन अलग कर दो, मैं ऑक्सीजन ले जाती हूँ, या आप ऑक्सीजन ले जाओ, मैं हाइड्रोजन ले जाती हूँ, वी वोंट बी एबल टू डू दैट। बट केमिकली डिकम्पोजिशन इज पॉसिबल।
विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस भी हम लेटर ऑन बड़ी आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो डिकम्पोजिशन या सेग्रीगेशन ऑफ एलिमेंट्स इज पॉसिबल इन व्हेन दे आर इन द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, बट व्हेन दे आर प्योर एलिमेंट वी वॉन्ट बी further divide them. So both of things will be coming in the category of pure substance. Am I understandable to you? Okay, good. So let's come to the another point. Another kind of matter is known as mixture. इसके बारे में भी आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है. Mixture can be physically separated. Yes, that is why they are in the another category. You can see over here, this category is called the things which can be, easily physically separated. All right, just a minute. Let me use my digital pen. Okay. So mixture belongs to the category where it can be again divided into two forms. One is homogeneous mixture and another one is heterogeneous mixture. I'm sure you must be already familiar about these two different new words, homogeneous mixture as well as heterogeneous mixture. अब mixture मतलब air. एयर का आप समझ लो कि इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं, बट एयर को हमने मैटर कंसीडर किया था. तो वन मैटर इज अ एयर जो कि इजीली सेग्रीगेट नहीं हो सकती है. उसको आपने बोल तो दिया कि भाई मैटर है, वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, इसलिए आपने मैटर कंसीडर किया, बट वी कैन नॉट फिजिकली इजीली सेपरेटेड देम. So it is a composition of if the composition of the mixture is uniform, that means homogeneous mixture, and if the uniform is a composition of uniform, then heterogeneous नहीं है, तब इसको आप बोलोगे heterogeneous mixture. मतलब homogeneous मतलब same same, heterogeneous मतलब different, similar नहीं है. तो if the mixture has the component which are the same category, they belongs to the homogeneous mixture, and if the category is different, that belongs to the heterogeneous mixture. Now next slide goes to, so भाई अब प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने सीखा. प्योर सब्सटेंस, it cannot be chemically decomposed compound and element. Substance that cannot be broken down into the simpler substance by chemical means हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन. आप इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो. और द थिंग्स विच कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय डिफरेंट केमिकल मेथोडोलॉजी व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द डेफिनेट रेशियो विल बी नोन एज वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड शुगर. अब ये वाली बात आपको अगेन फिर से सीखने को मिलेगी कि भाई कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं. फिर से मैं आपको रिकॉल कराने के लिए व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करने वाली हूँ. जो एलिमेंट्स हैं आप उनको प्योर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं? एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर हमें बहुत सारे एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे आप फैमिलियर हैं. केवल मैं इन्हीं का लेती हूँ, जैसे कि कैल्शियम ऑल्सो यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस. अब इन एलिमेंट्स के अंदर आप उनको सेग्रीगेट कर कर ऑक्सीजन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. क्लियर? वाइल जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, जब दो अलग अलग एलिमेंट जैसे कि एच एंड ओ, कौन मुझे बताएगा कि एच एच ओ जो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है वो बेसिकली क्या है? H2O. अब H2O में आप देख रहे हो कि जो एलिमेंट्स हैं, प्लीज एक्सक्यूज दिस थिंग, लेट मी रीराइट दिस, H2O. H2O में से अगर मैं हाइड्रोजन को हटाना चाहूं तो ये साधारण टेक्नोलॉजी से तो पॉसिबल नहीं है, बट इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है. बनाया तो जा सकता है, बट कंपाउंड के अंदर ये जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, क्या आपको पता है उनकी प्रॉपर्टीज और एलिमेंट की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है? लाइक अगर मैंने यहाँ पर बनाया H2O, यहाँ पे बनाया CO2, यहाँ पे बनाया NH3, और इनका स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से डिजाइन करती हूँ, HOH, C डबल बॉन्ड O एंड NH एंड H. अब देखो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनमें और यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है. जब ये ही एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जब सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. करेक्ट?
जब ये सिंगल इंडिविजुअल कैटेगरी में प्रेजेंट होता है तब इसकी खुद की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, बट जैसे ही ये H2O में ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक कंपाउंड बना लेता है, इसकी प्रॉपर्टी इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से एकदम अलग हो जाती है। दैट मीन्स व्हेन एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल फॉर्म, it's their property are their individual property, but when they combine with another element and form different compounds, their property will completely different. Well clear to you? This thing we have already learned in the previous classes, but here you will be understanding why these things are, working like this. How this water molecule has different property while hydrogen has different property, why oxygen has different property. Hydrogen and oxygen both, are differently behaving when the combustion happening. But when they are together in the form of water, they will be, they are against the combustion. को भी आग लग जाती है तो हम सबसे पहले पानी का यूज करते हैं, और आग बुझाने में हमारा पानी यूज होता है, वाइल आग लगाने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूर हमेशा पड़ती है। बिना ऑक्सीजन गैस के कोई भी एलिमेंट को हम जला नहीं सकते हैं। करेक्ट। सो कंबशन के लिए हेल्पफुल गैस है ऑक्सीजन, बट जब भी यही ऑक्सीजन गैस वाटर में आ जाती है तब वो कंबशन को एकदम उल्टा कर देती है और आग को बुझा देती है। समझ में आया बात? दैट मीन्स जब भी वो एलिमेंट की कैटेगरी में होती है तब उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी काम करती है, बट जब वो कंपाउंड की कैटेगरी में होती है तब कंपाउंड की कैटेगरी एलिमेंट की कैटेगरी से कंप्लीटली डिफर होती है। वेल क्लियर? नाउ अगेन I am raising all this and sharing my screen to you. तो प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में हमने सीख लिया है। व्हेन टू और मोर एटम्स of the different elements combine together in a definite ratio, they form water, ammonia, carbon dioxide, and sugar. While element, the substance that cannot be broken down into the simpler substances by chemical means, they will be known as hydrogen, helium, nitrogen, and any other. If you would like to copy this thing, you can easily do copy. Let's move ahead. मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये मिक्सचर्स जो है, I'm scrolling it down. A mixture contains particles of two or more pure substances which may be present in it any ratio. जैसे अभी हवा में कितनी भी गैसेस हैं अलग अलग रेशो में प्रेजेंट हैं, तो वो एक मिक्सचर कहलाएगा। हम जो नमकीन खाते हैं घर में वो भी अलग अलग रेशो में, तो थोड़ा सा उसमें मूंगफली दाने होते हैं, थोड़े थोड़े पोहे होते हैं, थोड़ा नमक होता है, थोड़ा मिर्च होता है, थोड़ा सॉल्ट भी होता है, थोड़ा शुगर भी होता है। सो उसका कोई प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता है। एवरीवन हैज देयर डिफरेंट टेस्ट, सो दे मेक द मिक्सचर according to their own taste, right? So mixture is the thing where the components are not in the fixed proportion, correct? The components of the mixture where the components are uniformly distributed will be considered as sugar solution. अब देखो, जब भी हम नमक ग्लास लेते हैं पानी का, उसके अंदर शुगर डालते हैं, स्टर करते हैं, और जब भी वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, पूरी डिसॉल्व हो जाता है, तो वी कैन नॉट से कि ना शुगर पार्टिकल ऊपर वाली लेयर में है या नीचे वाली लेयर में। यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, द शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन दिस ग्लास ऑफ वाटर एंड यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इवन विदाउट टेस्टिंग इट कि इसके अंदर शुगर है भी या नहीं है, राइट? एंड ऊपर वाले पोर्शन में शुगर है या नीचे वाले पोर्शन में शुगर है, नहीं। इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन दिस एंटायर ग्लास ऑफ वाटर। सो फ्रॉम एनीवेयर इफ यू वांट टू टेस्ट द अपर लेयर पार्ट ऑफ द ग्लास or the lower layer water of the glass will be tasting the same. That means the sugar is completely dissolved in that, and it is making a mixture where the components of sugar are completely dissolved in that and uniformly distributed among the water molecule. Am I clear to you? Completely dissolved in the same manner. Air, जो हवा हमारे चारों तरफ है, हमारे रूम के चारों तरफ है, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन गैस का कंपोनेंट ज्यादा है, यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा है, यहाँ पर CO2 ज्यादा है, यहाँ पर हीलियम ज्यादा है, यहाँ पर नियॉन ज्यादा है, एनी अदर। We cannot say that in which area the which gas components are higher. That means they are uniformly distributed in around in our surrounding. Clear हुआ? So such kind of component, such kind of mixture where the components are uniformly distributed. Uniformly distributed का मतलब क्या हुआ? पूरी तरीके से distributed है, बराबर 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 मात्रा में। क्लियर हुआ? उनको आप ये नहीं बोल सकते हो कि आधा पार्ट यहाँ पर ज्यादा, आधा पार्ट यहाँ पर कम है। करेक्ट? सो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर। ठीक है? इस तरीके के मिक्सचर को आप बोलते हो होमोजीनियस मिक्सचर, और वी कैन कॉल देम सॉल्यूशन आल्सो। व्हाइल heterogeneous mixtures will be those mixture where the composition is not uniform. ठीक है? The composition is not uniform throughout and sometimes different components are visible also. एग्जाम्पल, जब हम कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, आप सब लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते होगे, राइट? कॉर्नफ्लेक्स, और वो क्या होता है,
चोकोस खाते हो, तो जब हम उसको मिल्क को बाउल में लेते हैं और मिल्क के ऊपर हम कॉर्नफ्लेक्स मिक्स करते हैं, तो वो कॉर्नफ्लेक्स ऊपर के ऊपर तैरते रहते हैं और इजीली आप उसको स्पून से लेते हो और साथ साथ मिल्क के अपने आप साथ खाते जाते हो। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस इज अ मिक्सचर, बट दिस मिक्सचर हैज वन कॉर्नफ्लोर और you can cornflakes, or you can identify with chocos or anything else. If it is mixed with milk, you can easily identify, and then you can easily consume it अकॉर्डिंग टू योर विश, योर चॉइस। समझ में आई बात? तो ऐसे सिचुएशन में आपने फाइंड इट आउट किया कि कंपोजिशन ऑफ कॉर्नफ्लेक्स और चोकोस और एनीथिंग एल्स विच इज मिक्स्ड इन द your breakfast bowl is not uniformly mixed in the entire milk, right? Mud in the water is another example for the same. Mud in the water in this glass, you can easily identify something is present in that, and you will definitely not drink this water. While in this water, you won't be able to identify what components are mixed in this, right? And you will definitely drink this water. Over here, you can easily see some solid particles are present in this water, which is, not looking good. You can easily identify these are the mud particles, soil particles mixed in that. You can easily identify it. Their composition is also not properly पूरा ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है हल्का हल्का येलो है, नीचे वाला पार्ट जो है ज्यादा गहरा है। इट कंप्लीटली शोइंग दैट द पार्टिकल्स आर इन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म मैनर में नहीं है। क्लियर हुआ? तो सच काइंड ऑफ कैटेगरी वेयर द कंपोनेंट्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट विल बी कंसिडर एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आई बात? सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। अपार्ट फ्रॉम दैट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल हमें डे टू डे लाइफ में और देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब भी आप देखो इस पिक्चर को देखो और इसको इजीली समझने की कोशिश करो। इनफैक्ट इसको आप अगर इफ यू वांट टू टेक write it down somewhere, you can write it down. Heterogeneous mixture where you can see this black color particles, एक दो तीन चार ब्लैक दिख रहे हैं, फिर ये आपको ग्रे नजर आ रहे हैं, फिर दो ब्लैक नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स इनका जो कंपोजिशन है वो पूरी तरीके से फिक्स नहीं है कि कहीं पे कोई सा भी पार्टिकल लगा दिया गया है। मल्टी फेज सब्सटेंसेज इन द non-uniform compositions. Clear? In example of this in day to day life is salad. जब हम सैलेड खाते हैं तो उसके अंदर ब्रोकली भी होती है, टोमेटो भी होते हैं, कुकुम्बर भी होती है, अनियन भी होता है, और बहुत सारी वेजिटेबल होती है जो भी हम अपने विश के हिसाब से इस वेजिटेबल बोल में या सैलेड के बोल में मिक्स करते हैं। कोई भी सैलेड का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। क्लियर? सच काइंड कैटेगरी बिलोंग्स टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अनदर एग्जाम्पल फॉर द सेम, आइस क्यूब्स इन अ ड्रिंक। हम कोका कोला पीते हैं या फिर अपना कोई भी शेक पीते हैं, मैंगो शेक पीते हैं या बनाना शेक पीते हैं, उसमें हम आइस क्यूब भी डालते हैं, बनाना भी डालते हैं, या फिर अगर कोई और दूसरे फ्रूट्स का हमें शेक बनाना है तो उनको भी हम मिक्स कर देते हैं, राइट? और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। बट वी कैन नॉट इजीली से कि कितना पार्ट या कितना उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर आइस तो आपको अलग ही नजर आ रही है कि वो अलग जा रही है, राइट? वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, but you can easily identify it and recognize it. In fact, if you do not want to eat this, consume it, you can easily remove it with the help of a spoon. Am I clear to you? So such kind of mixture will be considered as heterogeneous mixture. Similar manner में gaseous state का example है smoke. Smoke के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल, बहुत सारी pollutants are present in that, बहुत सारे acids are also present in the form of solid material and the gaseous material. So the gaseous smoke is basically the example of heterogeneous mixture जो कि हमको डे टू डे लाइफ में एवरीडे देखने को मिलता है। तो दीज आर द एवरीडे एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच यू कैन इजीली ऑब्जर्व इन योर होम डे टू डे लाइफ में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट। Okay, now this is done for the day, and later on, I think this is everything is understandable easily to you. And later on in the next class, what we are going to learn is in the next class. I hope you enjoyed today's class, and in the next class, because this is the half part, in the initial part of the first chapter of grade 11, definitely there are many more things in this chapter which we are going to learn in the second class, where I'm going to teach you what is exactly the valency, how you are going to write a chemical formula, what basically the mole concept is. I think this thing is very important.
from my point of view, which is new to you, as well as the law of chemical combinations, which you are going to, learn something new in this chapter. Till now, you have already aware about some similar kind of things which we have learned in the first part of this chapter. So the second part of the chapter will cover such things in detail, and afterward this chapter will be completely done for you. Let me show you from your textbook how much we have covered by today. So this is your chapter. This is your textbook, right? So development of chemistry, we have done with the help of different slide where we have talked about अथर्ववेद रजुर्वेद एडवेद चरक संहिता के थ्रू हमने पूरी बातें सीखी, एज वेल एज हमने सीखा एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, क्यों हमें, अच्छा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या होती है, बट केमिस्ट्री अगर हमको बुखार आ जाता है तो हम जो मेडिसिन खाते हैं वो केमिस्ट्री है। करेक्ट, केमिकल रिएक्शन, हम जैसे ही मेडिसिन खाते हैं हमारा बुखार उतर जाता है, मतलब क्या हुआ, केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर गए और उन्होंने केमिकल रिएक्शन करी और हमारे अंदर के जर्म्स को या बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय किया, एंड देन वी आर कंप्लीटली फाइन। दैट मीन्स द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ chemistry. So this is the very important thing, right? Nature of matter we have covered it, states of matter we have covered, we have where we have learned solid, liquid and gases and their properties. So this thing we have already covered. This thing of the structure of solid, liquid and gas, and according to their property we have discussed, as well as we have discussed matter, mixture. Matter is distributed into two parts, mixture and pure substance, where we have learned homogeneous, heterogeneous elements and compound. And later on the rest of the part which we are going to cover in the next class, in the next session. Clear? So I hope you enjoyed today's class, and you must have already made some interesting notes also. So thank you so much. I'm done for the day. Thank you.